امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر اب تک کی سب سے خطرناک بمباری۔ جنگ کے 32ویں روز اصفہان پر 2000 پاؤنڈ وزنی بسٹر بام گرا دیے، بڑے پیمانے پر تباہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آسمان کی جانب اٹھتے آگ کے گولے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ تہران میں سب اسٹیشن پر حملے کے بعد مختصر بلیک آؤٹ۔ زنجان میں مسجد پر بمباری میں 3 نمازی شہید، 10 سے زائد زخمی۔ میناپ میں ایرانی فوج نے دشمن کے ڈرون مار گرائے۔ اسرائیل نے مشہد ایئرپورٹ پر کھڑے امدادی سرگرمیوں میں استعمال ہونے والے طیارے کو نشانہ بنا ڈالا۔ خوشم میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ حملے کے بعد ناکارہ ہو گیا۔ Given the increase in air superiority, we've successfully started to conduct the first overland B-52 missions, which allow us, as we've said before, to continue to get on top. امریکہ کا ایران پر حملوں کے لیے پہلی بار B-52 بمبار طیاروں کا استعمال۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کینت نے تصدیق کر دی۔ امریکی سینٹ کام نے ایران پر حملوں کی فوٹیجز جاری کر دی۔ مختلف پلانٹس، طیاروں اور گاڑیوں کو ٹارگٹ بنتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر اہداف پر جوابی وار۔ صہیونی ریاستوں پر حملوں کی 88ویں لہر کے تل ابیب پر میزائل باری۔ کئی شہروں میں سائرنز بج اٹھے، کئی مقامات پر گاڑیاں تباہ ہو گئیں، شعلے اٹھتے دیکھے گئے۔ وسطی اسرائیل میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ایرانی حملوں سے اسرائیلی شہری شدید خوف میں مبتلا۔ مقبوضہ علاقہ جات کے شہر فتح تقوا میں تباہی مچ گئی۔ پاسداران انقلاب کا خلیج فارس میں صہیونی کنٹینر شپ پر بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ ایران کے امریکی اہداف پر پے در پے وار۔ متحدہ عرب امارات کے ساحل پر فوجی اڈے کے باہر امریکی میرینز کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں منامہ ایئرپورٹ کے قریب US 5th فلیٹ کا اینٹی ڈرون سسٹم تباہ کر دیا گیا۔ کویت میں امریکی بیس پر 2 جدید انتباہی ریڈارز نشانہ بن گئے۔ ہوائی جہازوں کے ہینگرز، فوجیوں کی رہائش گاہیں اور اسلحہ گودام کھنڈر بن گیا۔ دبئی کے جنوبی علاقے میں ڈرون حملے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پاسداران انقلاب کا امارات میں امریکی المنہاد بیس پر حملے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ President Trump will make a deal he is willing. And the terms of the deal are known to them. If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ ڈیل کے خواہش مند۔ ایران سمجھداری دکھائے اور معاہدہ کر لے۔ امریکہ کے وزیر جنگ کا تہران کو مشورہ۔ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں مزید سخت اقدامات کی دھمکی۔ ایران جنگ کے حوالے سے آئندہ چند روز فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ ایرانی بحریہ، فضائیہ اور بری فوجی قیادت کو ختم کر دیا گیا۔ سپلائی چین مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ پیٹ ہیگسیٹ کی نیوز کانفرنس۔ امریکی صدر کی آبنائے ہرمز کھلوائے بغیر ایران جنگ ختم کرنے کی تیاریاں۔ ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی مہم ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، خواہ آبنائے ہرمز بند ہی کیوں نہ رہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ اخبار کے مطابق آبی گزرگاہ کھلوانے میں مزید 4 سے 6 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے مشیران کا جنگ کی بجائے ایران پر سفارتی دباؤ کا مشورہ۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کا آپریشن پیچیدہ، سفارتی کاوشیں ناکام ہوئیں تو اتحادیوں کے ساتھ آپریشن ممکن ہے، وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ۔ ٹرمپ کی اپیلیں کام آئیں نہ ہی دھمکیاں۔ اتحادی ممالک نے امریکہ کو پھر ہری جھنڈی دکھا دی۔ برطانیہ، اسپین اور اٹلی کے بعد پولینڈ کا ایران جنگ میں امریکہ کی مدد کرنے سے صاف انکار۔ امریکہ نے پولینڈ سے پیٹریاٹ میزائل مشرق وسطی بھیجنے کی درخواست کی تھی۔ پولینڈ کے پیٹریاٹ میزائل ملک کی سلامتی اور نیٹو کی مشرقی فضائی حدود کے تحفظ کے لیے ہیں، کسی بھی صورت مشرق وسطی نہیں بھیجیں گے۔ پولینڈ کے وزیر دفاع کا 2 ٹوک جواب۔
इत्तेहादियों के जवाब पर डोनाल्ड ट्रंप शदीद बरहम। बरतानिया समेत नेटो ममालिक को जेट फ्यूल चाहिए तो अमेरिका से खरीदें या फिर खुद बनाएं। हरमुज जाएं और तेल ले आएं। उन्हें लड़ने का तरीका सीखना होगा। अमेरिका वहां उनकी मदद के लिए नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इत्तेहादी ममालिक ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के साथ मौजूद नहीं। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमेरिका ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान के सिफारती मिशन में तेजी। बीजिंग में वजीर खारजा सागदार की चीनी हम मनसब वांग यी से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और चीन मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती मुश्तरका इक़दामात पर मुत्तफ़िक़। फौरी जंग बंदी, मुतासरा इलाकों में इंसानी इमदाद की फराहमी, मुज़ाकरात के आगाज, ईरान और खलीजी ममालिक की खुदमुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़, तवानाई, पानी और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने से गुरेज और सिविलियंस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मुतालबात। रूस ने ईरान में रिजीम चेंज की पॉलिसी, तेल और गैस के वसाइल पर कब्जे की काविश करार दे दी। अमेरिका, इसराइल, ईरान और उसके पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के ख्वाहां नहीं। मशरिक़ वस्ता में मौजूद बहरान बड़े पैमाने पर तब्दील हो सकता है। जंग बंदी अपनी शर्त पर करेंगे। किसी भी फैसले से काबिल कौमी मुफाद को मद्देनजर रखा जाएगा। कौमी वक़ार और सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईरानी पार्लियामेंट में खिताब। मुल्क के दिफा के लिए फौज का किरदार तारीखी करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब को बरादर मुल्क करार दे दिया। अमरीकी अफवाज के इनखला का मुतालबा। ईरान की फौजी कार्रवाइयाँ सिर्फ उन जारहे दुश्मनों के खिलाफ हैं जो अरबों का एहतराम करते हैं, ना ही ईरानियों का। बैरूनी ताकतें खित्तों के सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती। वक्त आ गया है कि खित्ते से अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखला यकीनी बनाया जाए। अब्बास इराक़ची का बयान। तुर्क हम मनसब को टेलीफोन करके मुस्तक़बिल के इसराइली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से आगाह भी किया। तुर्की की इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की यकीन दहानी। ईरानी फौज ने अमरीका का एक और बगैर पायलट तैयारा MQ-9 मार गिराया। अमरीकी ड्रोन इस्फहान के ऊपर परवाज कर रहा था। फजाई दिफा ने निशाना बनाया। खलीज फारिस के जजीरे कुशुम पर लोकास ड्रोन मार गिराया गया। ईरान की जानिब से अमरीका और इसराइल के गिराए गए ड्रोन्स की तादाद 147 हो गई। The president has set a deadline for April 6 in just 1 week. What does the president need to see to not move forward with those strikes by April 6? Well, I think he said it in his Truth Social post this morning. He wants to see a deal over the next 10 days. That timeline is waning, several days left, and we'll see. I won't get ahead of it. We'll see what happens in the end of the 10-day period. तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने आबनाए हुर्मुज़ से महदूद पैमाने पर जहाज रानी को ट्रंप की पसे पर्दा सिफारती काविशों का नतीजा करार दे दिया। अमरीकी सदर 6 अप्रैल तक ईरान से डील चाहते हैं। ईरान बैकडोर जो मामला तय करेगा उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इंकशाफ किया कि ट्रंप अरब ममालिक से ईरान जंग के अखराजात में मदद मांगने का इरादा रखता है। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स लेने की कानून की मंजूरी दे दी। टोल टैक्स ईरानी रियाल में वसूल किया जाएगा। अमरीकी और इसराइली जहाजों को इजाजत नहीं होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कानून को मुस्तरद कर दिया और नाकाबिल कबूल करार दिया। ईरानी इक़दाम के खिलाफ कई ऑप्शंस मौजूद हैं। मार्को रूबियो का दावा। Now, they are making threats about controlling the Hormuz Straits in perpetuity, creating a tolling system and the like. That's not going to be allowed to happen. And the president has a number of options available to him if he so chooses to prevent that from happening. Obviously, I'm not going to discuss what those options are, and we're not going to discuss military tactics. खलीज फारिस से सफर शुरू करने वाले चीन के 3 कंटेनर्स बरदार जहाजों ने आबनाए हुर्मुज़ क्रॉस कर लिया। चीन का ईरान से इजहार तशक्कुर। ईरान ने पाकिस्तान के 20 तेल बरदार जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी थी।
हिजबुल्लाह के इसराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले, 24 घंटों के दौरान लेबनान की हुदूद में इसराइली फौजियों पर 43 हमले, 10 किलोमीटर अंदर घर घुसकर गैर कानूनी बस्तियों और फौजी ठिकानों को टारगेट किया। हलाक फौजियों की तादाद 6 हो गई, मुतअद्दिद जख्मी, मजीद टैंक्स तबाह। 6 चंद जांबाजों का अमरीका और इसराइल के जमीनी हमले की सूरत में फौज ईरान भेजने का ऐलान। हिजबुल्लाह, हौसी और इराकी अशाबी पहले ही जंग में ईरान के साथ शामिल हो चुके हैं। ईरानी बहरिया के सरबराह एडमिरल अली रजा तंगसीदी की बंदर अब्बास में तदफीन, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत, शहीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। ईरान में अमरीका और इसराइल के लिए काम करने वाले मजीद 54 अफराद गिरफ्तार। मुल्तान जासूस नेटवर्क और स्लीपर सेल चला रहे थे। गिरफ्तारियां फारिस, तेहरान, किरमानशाह और गिलान में अवामी मदद से की गईं। मुल्जिमान चेक पॉइंट्स और हसास तनसीबात की मालूमात दुश्मन को फराहम करते थे। 10 की शनाख्त जासूस के तौर पर कर ली गई। असलहा और गोला बारूद बरामद। अल्लामा ताहिर अशरफी ने खलीज ममालिक की जंग में शामिल न होने का क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दे दिया। अमरीका और इसराइल अरब और ईरान को लड़ाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी क़यादत ने सऊदी अरब से मिलकर साजिश नाकाम बना दी। अरब ममालिक, तुर्की और ईरान पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल की ईरान से खलीजी ममालिक पर हमले बंद करने की अपील। मशरिक़ वुस्ता की गैर यकीनी किसी सूरत हाल ने तेल की कीमतों को आग लगा दी। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड की कीमत $118 फी बैरल से तजावुज कर गई। अमरीकी खाम तेल भी $102 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। खित्ते की कशुदा सूरत हाल ने LPG की कीमतों को पड़ लगा दिए। फी किलो की कीमत $78.28 से तजावुज कर गई। LPG की नई कीमत $304.12 हो गई। मुल्क भर के तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में ऑनलाइन के बजाय मामूल के मुताबिक फिजिकल क्लासेस होंगी। सिंध में तालीमी इदारे हफ्ते में 5 रोज खुल सकेंगे। हफ्ते और इतवार को छुट्टी होगी। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत केस का फैसला। अदालत ने गुलकारा और अदाकारा को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अली जफर ने हिरासानी के इल्जाम लगाने पर गुलकारा के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। मीशा शफी के वकील का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इस्लामाबाद में ताजिर आमिर आबान के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान गिरफ्तार। गैंग का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जिसमें अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। ताजिर को डकैती के दौरान कत्ल किया गया। तलाल चौधरी की तस्दीक। विफाक दारुल हुकूमत को पहला स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में कोई ऐसा कत्ल नहीं जिसका खोज न लगाया गया हो। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की शेखुपुरा में बड़ी कार्रवाई। गाड़ी से 3 करोड़ रुपए मालियत की 100 किलोग्राम मुनशियात बरामद। गाड़ी में सवार 1 मर्द और 5 खवातीन गिरफ्तार। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। लाहौर के लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान वीडियो बनाने पर सीनियर इंतजामी अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी। 5 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए PMDC को खत। लेस्को ने नए बिजली मीटर के कनेक्शन की फीस 4 गुना बढ़ा दी। सार्फिन को मीटर लगवाने के लिए 6,400 की बजाय 21,300 रुपए जमा करवाना होंगे। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान सुपर लीग की रौनकें। लाहौर में बारिश के बायस इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच ताखीर का शिकार। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश। कई इलाकाजात में यालाबारी। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने कराची में कल से 3 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई कर दी।
اور سچے واقعات پر مبنی ISPR کی سیریز جرت کے نشان کی قسط ریلیز. میجر علی شہید اور حوالدار نثار شہید کے دہشت گردوں کے خلاف داستان جرت دیکھنے والوں کو بھا گئی.